Hello everyone. Hey guys, this is your J Educator Megha, and today I'm here for you with a topic equilibrium. We will be focusing over the super important concepts of equilibrium, whether it is the chemical equilibrium or the ionic equilibrium. Both will be catered in this particular session, and considering the previous year questions. Okay, so if you are if you have not yet studied this topic well and you are not confident in this topic, then definitely this is a session for you. Okay, this session is not for the one who are so brilliant in equilibrium. This is a session for those who are struggling in the topic and they want to understand the concept thoroughly, and they want to learn something out of it. So if you having a struggle with this topic, then yes, this is the time to join me. And please make sure that you attend my complete session. This is going to be of approximately 1.5 and 2 hours duration. Okay, so let's begin with it. I will just be taking 15 questions and they are going to be from the previous year papers, and definitely I will make sure that all these questions will make your concept clear, crystal clear. Okay, so these are few of the questions that I have picked for you. They are from the two different years, but they are really very interesting and very good questions. Okay, so if we will be able to focusing over such questions, then yeah, we will be able to master the whole topic. So if you are attending this session live, you do let me know, and then we will begin with it. Okay, so here is our very first question. I will tell you how we have to go through the question. First of all, read it and try to design it. Okay. So the question says that an aqueous solution contains an unknown concentration of barium ion. When 15 ml of a 1 molar solution of sodium sulfate is added, barium sulfate just begins to precipitate. The final volume is 500 ml. The solubility product of barium sulfate is 1 into 10 to the power minus 10. What is the original concentration of barium ion? If you will go through the question, you have understood that we have an aqueous solution contains an unknown concentration of barium ion. Means I am having Ba. So let's do it here. Okay, ultimately it will be visible to you. So when we were on this particular question, we can see that if we are talking about this aqueous solution, so the question is saying you are having Ba plus 2, you are having the aqueous solution of this. Okay. When the 15 ml, an aqueous solution contains an unknown concentration of barium ion, when the 50 ml of a when the 15 ml of a 1 molarity sodium sulfate, this is your sodium sulfate, and the volume of here it is the 50 ml, and the concentration is 1 molarity. Solution of sodium sulfate is added. Then what happens is barium sulfate just begins to precipitate. There will be the precipitation of barium sulfate. The final volume is 500 ml. So when this gets precipitated, the final volume that you get is when the whole reaction completes and you get the final volume. So the volume of this final is 500 ml. Okay, the solubility product of barium sulfate. Now the KSP value, the solubility product for this barium sulfate, KSP of barium sulfate is given to you. That is going to be 1 into 10 to the power minus 10. Now the question is asking what is the original concentration of barium ion. Means here you have to tell that what is the concentration of this barium ion. So this is the whole question. So how will you proceed through it? What is the content which is being given to you? Let me tell you guys how we can proceed for the whole question. Okay. You have not studied this chapter. Okay, but still you do follow me, है ना? अभी देखते हैं कि how we can proceed to the whole question. The question is saying कि barium sulfate, barium ion था हमारे पास कुछ भी, we were having some of the unknown barium ion concentration, उसमें मैंने sodium sulfate डाला, and this has precipitated the barium ion into the barium sulfate.
इसने मेरा सल्फेट ने इस बेरियम सल्फेट को मेरे को डिसोसिएट करके दे दिया. So when you will look for this particular part, let us divide this whole equation in three parts. मेरे पास एक पार्ट जो गिवन है दैट इज द KSP का वैल्यू गिवन है. यू नो व्हाट इज KSP? जो बेरियम सल्फेट होता है दैट इज अ प्रेसिपिटेट, है ना. इट इज नॉट अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, तो इट डिसोसिएट्स इनटू बेरियम आइन एंड द सल्फेट आइन. If you will look for the KSP value, this is equals to the concentration of a barium ion and the concentration of a sulfate ion. इसमें आपके पास आप बेरियम सल्फेट नहीं लिखते हो बिकॉज बेरियम सल्फेट डज नॉट डिसोसिएट्स. ओके, सो इट विल नॉट बी रिटन. सो KSP डिपेंड्स अपॉन दिस. अब KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इट इज गिवन टू यू 1 × 10⁻⁻10 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन यू डोंट नो. यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम गिवन है. डू यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन? नो, यू डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट. ये तो आपको फाइंड करना है. डू यू नीड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन? ओह माय गॉड, आई ऑल्सो डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन. देखो, इज देयर एनी वे जहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन दिया हुआ है? नो. तो अगर दो चीज़ आपके पास अननोन है, विल यू बी एबल टू कैलकुलेट दिस पार्ट? नो. तो फिर कैसे होगा? सो वी हैव वन अनदर थिंग. हमारे पास एक और चीज़ है. अब वो एक और चीज़ क्या है? फिगर इट आउट. सी हियर यू नो दैट कि सोडियम सल्फेट जो है आपका, द सोडियम सल्फेट इज डिसोसिएट्स टू गिव्स यू 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. ये पार्ट आपको सोडियम सल्फेट से पता है. तो अगर आपके पास इफ़ यू हैव द वॉल्यूम ऑफ 50 ml एंड योर कॉन्सेंट्रेशन इज 1 ml, तो इफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट डिसोसिएट्स टू गिव यू दिस, तो आपके पास यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आइन कितना हो जाएगा? सोडियम आइन का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर हो जाएगा एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइंस कितना होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट गिव्स यू 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी आपका 1 मोल ही रहे, 1 मोलारिटी ही रहेगा. दैट इज मोल्स पर लीटर ही रहेगा. और जो आपका वॉल्यूम होगा, येस दीज सल्फेट आइंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम, दैट इज द 50 ml वॉल्यूम में आपके पास प्रेजेंट है. तो हियर फ्रॉम हियर आई गॉट टू नो कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन और मेरा वॉल्यूम जो है सल्फेट आइन का इतना है. बट इफ आई वॉन्ट टू नो कि मेरा यहाँ पे वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन, सो इफ आई चेंज माई कलर ऑफ द पेन, आई वॉन्ट टू टेल यू कि बच्चे मेरे को सल्फेट आइन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे और सल्फेट आइन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू फिगर इट आउट. ठीक है. अब इसको देखते हुए व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पे वी कैन से दैट इन द केस ऑफ सोडियम सल्फेट भी मेरे पास सल्फेट है एंड इन द केस ऑफ द बेरियम सल्फेट भी मेरे पास सल्फेट है. इफ यू विल सी the sulfate of this part and the sulfate of this part, here we can say that this is M1V1, this is equals to M2V2. यानी कि we have to look for the concentration of sulfate ion. ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन. तो सोडियम सल्फेट में जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलारिटी गिवन है एंड हेयर इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास 50 ml गिवन है, राइट. एंड हेयर मेरे पास आई डोंट नो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई सल्फेट आइन. सो M2 का मुझे नॉलेज नहीं है. M2 आई कैन कंसिडर दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फेट आइन इन द बेरियम सल्फेट. और मेरे पास वॉल्यूम जो है बेरियम सल्फेट का दैट इज द 500 ml. ऑफ कोर्स व्हेन दिस विल डिसोसिएट इट विल गिव यू द आइन इन द कंप्लीट सॉल्यूशन. तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे 500 ml. सो इफ यू विल सी एंड कैलकुलेट द होल क्वेश्चन, दिस इज 1 मोलारिटी एंड दिस इज अननोन. तो आप यहाँ पे M2 की वैल्यू निकाल सकते हो विच कम्स आउट टू बी 1 × 50 मोलारिटी पर मिलीलीटर. दिस इज मोलारिटी पर मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 500 मिलीलीटर. ठीक है, मिलीलीटर. दिस इज ऑल्सो मिलीलीटर, नॉट पर मिलीलीटर. मिलीलीटर एंड मिलीलीटर विल कैंसल. दिस इज 0 0 एंड 5 5. So ultimately we are getting 1/10. 1/10 is the molarity, that is the M2. So what is this M2? So I got to know कि यहाँ पे मेरे पास सोडियम सल्फेट की 1 कॉन्सेंट्रेशन है, बट यहाँ पे इन द केस ऑफ द बेरियम सल्फेट आई हैव फिगर्ड इट आउट कि जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ सल्फेट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट इज गोइंग टू बी 1/10 मोलारिटी. ठीक है, तो हमने ये फिगर आउट किया. तो अगर मुझे मोलारिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन पता चल गया है इन दिस बेरियम सल्फेट, तो आई नो दैट कि मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये है. आई नो कि बेरियम आइन का कॉन्सेंट्रेशन आई रियली डोंट नो, क्योंकि जितना होगा उतना ही प्रेसिपिटेट करेगा, बट यहाँ पे जितना सल्फेट होगा उतना ही तो प्रेसिपिटेट करेगा. सो अल्टीमेटली हियर वी कैन से दैट कि सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इज 1/10. Okay, so when we will try to solve this, we will be able to get barium ion is equals to 1 × 10⁻⁻10 and it is going to be multiplied by 10.
multiplied by 10, right? If you will be cross multiplying, you will be getting 10. So 10 into 10 the power minus 10. So what is the answer guys? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? So how much will be the concentration of barium ion that we are getting from here? 10 की power minus 10, that is 10 the power 10 into 10 the power, this is 10 the power 1 and this is 10 the power minus 10. This is 10 the power 1 and this is 10 the power minus 10. So we can say that the concentration of barium ion is equals to 10 the power minus 9. So this is the ion concentration. Okay. तो उसने बोला था कि बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही सल्फेट को, जैसे ही बेरियम आयन को सल्फेट मिला, उसने बेरियम सल्फेट बनाना शुरू कर दिया। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम बेरियम सल्फेट है वो इतना ही बनेगा, राइट? क्योंकि इतना सल्फेट, जितना आपके पास सल्फेट है उतना अगर रिएक्ट कर जाता है सारा का सारा बेरियम आयन से, तो वो आपको इतना बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया मेरे को, कि मेरा बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर माइनस 9 मोलारिटी। मोलारिटी में ही आएगा, बिल्कुल मोलारिटी में ही आएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था इन दी एक्वस मीडियम। ओके क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 50 ml है, यहाँ पे आपके पास टोटल वॉल्यूम 100 ml हो गया। तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कुछ कितना रहा होगा, इफ वी विल फिगर इट आउट कि अगर कोई वॉल्यूम है जिसमें आपने सोडियम सल्फेट डाला का सोल्यूशन डाला एंड आपका टोटल वॉल्यूम इज 500 ml, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका वॉल्यूम कुछ 450 ml रहा होगा। तो अब मेरा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है बेरियम आयन का, दैट इज इन 500 ml, वो 500 ml में है। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 बीकर्स थे, मैंने दोनों को आपस में मिला दिया, तीसरा बीकर बन गया, मतलब तीसरा प्रोडक्ट बन गया। तो जब दोनों को मिलाया तो उनका वॉल्यूम ऐड हो गया ना। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 500 ml में मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये रहता है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि मेरे को बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन किस में, इन 500 ml सोल्यूशन में। और मुझे बात करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। सो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, यानी कि 500 ml में अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन तो वॉल्यूम के साथ साथ बदलता है, राइट? तो बदलता है, तो अगर बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 500 ml में इतना है, तो आई कैन से दैट अगेन M2V2 इज इक्वल्स टू M1V1, मैं M डैश V1 डैश ऐसे कर सकती हूँ। तो यानी कि मेरी मोलारिटी यहाँ पर आई थी इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन 500 ml वाले में 10 दी पावर माइनस 9 मोलारिटी। वॉल्यूम था यहाँ पे 500 ml। यहाँ पे आपकी मोलारिटी आपको फिगर आउट करनी है कि कितनी होगी, तो आपने कहा M1 डैश कुछ तो होगी, और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम क्या है 450 ml। तो डेफिनेटली अगर मेरा किसी भी चीज़ का वॉल्यूम वेरी करता है, 500 ml है या 450 ml है, तो वॉल्यूम बदलेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो बदलेगी, है ना? तो अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग अ टी, और अगर आप चाय को गैस पे छोड़ दो तो क्या होगा, इट विल गेट मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो उसकी मिठास भी तो बदलेगी। मतलब इधर इट विल गेट मोर स्वीटर ना, वो और ज़्यादा स्वीटर होती जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगी, क्योंकि जब आपने उसे गैस पे छोड़ दिया तो वॉल्यूम, वाटर तो वेपराइज हो गया और सारा का सारा आपका मतलब जो आपका वॉल्यूम था वो कम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो यहाँ पे 500 ml था तो कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब मेरा वॉल्यूम कम होगा तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए। तो हम इसी चीज़ को किससे निकाल सकते हैं, वी कैन पुट द लॉ ऑफ डाइल्यूशन। लॉ ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, विच इज सिंपली द मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला लॉ ऑफ डाइल्यूशन करके। आई होप यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। अगर यहाँ पे M1 डैश निकालोगे बाय डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, 500 ml डिवाइडेड बाय 450 ml, so you tell me what it is coming out to be, what is the final answer that you people are getting। एक बारी मुझे मैसेज कर दो जल्दी से। 500 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 10 दी पावर माइनस 9, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, ऑफ कोर्स इसको तुम 10 दी पावर माइनस 9 लिखा रहने दो। 450 डिवाइडेड बाय 500 इज गोइंग टू बी 1.1 समथिंग, राइट, 1.1 समथिंग।
तो 1.1 into 10 the power minus 9, that is option number C is going to be the correct answers of yours. Okay, so good enough. चलिए, now let's move to the another question, that is the question number 2. So always try to restructure your question, अपने question को restructure करो और उसको divide it into the sub parts and make it easy, अपने आपके लिए आसान करो उसे. So here the question number 2. 20 ml of 0.1 molarity H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molarity NH4OH solution. The pH of the resultant mixture is. अब आपको क्या बताना है, देखिए, listen it. The question is very interesting. 20 ml of 0.1 molarity 0.1 molarity लिखेंगे पहले, ठीक है. H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molarity NH4OH solution. अब आपसे पूछा गया है द pH ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर. तो पहले रिजल्टेंट मिक्सचर फिगर आउट करें क्या बनेगा. सो इफ यू विल सी द रिजल्टेंट मिक्सचर, तो वो बनना चाहिए अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O. इफ यू विल ट्राई टू बैलेंस द होल इक्वेशन, तो हमें करना पड़ेगा 1 मोल ऑफ H2SO4 विल रिएक्ट विद द 2 मोल्स ऑफ NH4OH, देन वी विल बी गेटिंग द अमोनियम सल्फेट मिल गया, ठीक है. एंड देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स मोनोऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड. दिस इज आवर रिजल्टेंट मिक्सचर. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि तुम्हारे रिजल्टेंट मिक्सचर का, इस मिक्सचर का pH क्या होगा. तो व्हेन आई आस्क यू द pH ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस, राइट. तो अब आप देखिए कि व्हाट इट इज फॉर्मिंग, ये बन क्या रहा है, ठीक है. सो वी हैव टू फिगर इट आउट. ऐसा तो नहीं है कि इज दिस रिएक्शन इज कंप्लीटिंग 100%. इफ 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ NH4OH, तो हमें ये पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रल सोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि वी गेट द pH इज गोइंग टू बी द 7. बट क्या ये पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है? How we will be thinking of it? We have to figure out the number of H positive ions and the number of OH negative ions. Okay, चलिए start calculating the whole question and then do let me know. Break down the question into different parts and then do the question. अगर आप यहाँ देखोगे तो if you have 1 mole of H2SO4, 1 mole of H2SO4 gives you 2 moles of H positive plus SO4 2 negative, right. So ultimately if you are having 20 ml of H2SO4 and 0.1 molarity, इसका 0.1 मोलारिटी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2H पॉजिटिव कितनी हो जाएगी. वॉल्यूम तो 20 ml ही रहेगा, इसका वॉल्यूम तो 20 ml ही रहेगा, बट द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स. मतलब क्योंकि 1 मोल इज गिविंग मी 2H पॉजिटिव, तो 2H पॉजिटिव यानी कि 2 इंटू 0.1 मोल इज गोइंग टू बी 0.2 मोलारिटी विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आइन. हाँ जी, तो ये हो जाएगा. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि how many number of moles. It's better you figure out the total number of moles of H positive that you will be getting. How many total number of moles of H positive you will be getting in the whole question. See, what I have to figure out, मुझे पता करना है कि H पॉजिटिव का मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, राइट. गाइज यू पीपल कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट, ठीक है. कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो यू प्लीज़ मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अपना नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कितना आएगा. यहाँ पे तो 1 मोल आपको 2 मोल्स देता है, तो यहाँ पे इफ़ यू हैव टू फिगर आउट योर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है. तो मोलारिटी आपके पास कितनी है, 0.1 मोलारिटी है. वॉल्यूम है आपके पास 20 ml, मिली लीटर है तो मिली मोल्स आएंगे, ओके. तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग 20 इंटू 0.1 इज गोइंग टू बी 0.2 मिली मोल.
ये हो गया। अगर 1 मिलीमोल मुझे 2 मोल देता है तो 0.2 मिलीमोल मुझे इसका डबल देगा, यानी कि 2 × 0.2 मिलीमोल्स मुझे मिलेंगे, राइट। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 जब आपको 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव देता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स मिलेंगे, 2 × 0.2 मिलीमोल। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग दी H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे जब आपने देखा कि यू आर हैविंग NH4 पॉजिटिव आइन, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। एक बारी कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा यहाँ पे यू हैव दी NH4OH, तो NH4OH जब आपको ब्रेक डाउन करता है तो आपको देता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। 2 मोल्स ऑफ NH4 अगर आपके पास होते हैं तो ये आपको देते हैं 2 मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो व्हेन यू आर हैविंग 0.2 मोलारिटी एंड 30 ml, आपके पास वॉल्यूम है इसका 30 ml एंड मोलारिटी इज 0.2 मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए इसके, दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30 कम्स आउट टू बी 3 to 6, दैट इज 0.6 मिलीमोल्स हुए आपके पास, राइट। 0.6 मिलीमोल्स हुए। तो 2 मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव देते हैं, तो 0.6 मिलीमोल्स विल गिव यू दी 0.6 मिलीमोल्स 6 मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव आइन, यानी कि OH नेगेटिव का मेरे पास इतना कॉन्सेंट्रेशन है और दी H पॉजिटिव का मेरे पास इतना कॉन्सेंट्रेशन है, विच इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू 0.4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल, इजंट इट, 4 मिलीमोल ऑफ H पॉजिटिव। तो हमने ये निकाल लिया कि इससे मुझे कितना H पॉजिटिव मिल रहा है, इससे मुझे कितना OH नेगेटिव मिल रहा है। तो अल्टीमेटली दी H पॉजिटिव एंड दी OH नेगेटिव दैट वी आर गेटिंग विल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अल्टीमेटली इतना ना तो न्यूट्रलाइज किया और आपको पानी दे दिया, तो अल्टीमेटली 0.4 विल रिएक्ट विद 0.4 millimole of OH negative to give you 0.4 millimole of water। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्ट किया और 0.4 मिलीमोल ऑफ वाटर, इतना मोल्स ऑफ वाटर यू विल बी गेटिंग। तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। नाउ यू विल फिगर इट आउट कि इतना न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। एंड द अमोनियम सल्फेट, तो कितना अमोनियम सल्फेट बना होगा, डेफिनेटली 2 मिलीमोल्स ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो वी कैन से दैट वी आर गेटिंग 0.4 मिलीमोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके, वो कितने हो जाएंगे, अमोनियम सल्फेट भी आपको कितना मिलेगा, 0.4 मिलीमोल ऑफ अमोनियम सल्फेट आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखो 0.4 मिलेगा, कितना मिलेगा, क्योंकि 2H पॉजिटिव व्हेन कंबाइंस गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ H2O, 2H पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ देता है, यानी कि 4, तो यानी कि 2H पॉजिटिव व्हेन कंबाइंस गिव्स यू 2OH नेगेटिव, तो 0.4 मोल व्हेन कंबाइन विल रिएक्ट विद 0.4 मोल टू गिव यू 0.4 मोल। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि नाउ आई एम अगेन चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। आई हैव टेकन द ऑरेंज कलर, तो 2 moles of NH4 positive when combines with 1 sulfate gives you 1 mole। तो आपके पास यहाँ पे कितना मोल ऑफ अमोनियम आइन आया था, तो अमोनियम आइन भी अगर आप देखोगे तो यू विल बी गेटिंग हेयर 0.6 आपको डिसोसिएट करेगा, तो यहाँ पे भी 0.6 ही मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली कितना रिएक्ट कर रहा है वो, तो 0.6 आपका रिएक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली 0.4 ही रिएक्ट कर रहा है ना आपका, क्योंकि तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना है, अगर यहाँ पे आपके कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था, सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन निकालो चलो, तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2, ओके। अमोनियम आइन का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.6, तो अल्टीमेटली 0.6 जब 0.2 से रिएक्ट करेगा तो वी नो दैट कि 2 मोल्स 1 से रिएक्ट करते हैं, है ना, यानी कि 2 अमोनियम आइन को 1 सल्फेट आइन से रिएक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे 0.4 मोल ऑफ अमोनियम आइन विल बी कंज्यूम्ड टू रिएक्ट विद टू रिएक्ट विद द सल्फेट आइन। तो अल्टीमेटली आई कैन से दैट मेरे पास ये 0.2 मोल बनेंगे, 0.2 मिलीमोल ऑफ सल्फेट आइन आई विल बी गेटिंग, क्योंकि एक सल्फेट 2 अमोनियम आइन से रिएक्ट करता है, तो 0.2 0.4 से रिएक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली 0.2 मिलीमोल ऑफ अमोनियम सल्फेट बनेगा,
ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग द अमोनियम आइन इन एक्सेस, और तुम्हारे पास 0.2 मिलीमोल ऑफ अमोनियम आइन एक्स्ट्रा बच जाएगा, राइट क्या बच जाएगा, यू विल बी गेटिंग अमोनियम आइन, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है तुम्हारे पास, 0.2 मिलीमोल ऑफ अमोनियम आइन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा. सिमिलरली व्हेन द वाटर विल रिएक्ट विद द वाटर, जब H पॉजिटिव ओ H नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो 0.4 से रिएक्ट करेगा, तो वी विल ऑल्सो बी गेटिंग दी ओ एच नेगेटिव लेफ्ट, वो ओ एच नेगेटिव भी कितना बचेगा, 0.2 मिलीमोल बचेगा. तो ये तुम्हें फिगर आउट करना था. दिस इज वॉट दिस इज वॉट दिस इज वॉट यू हैव टू फिगर इट आउट. ठीक है, कि कितना कितने से रिएक्ट करेगा. आई होप द होल पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमने देखा H2SO4 कितना है, इसने कितना H पॉजिटिव दिया, कितना इसने सल्फेट दिया. ठीक है, इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है, इसने कितना अमोनियम आइन दिया और कितना हाइड्रोक्साइड आइन दिया. HOH से रिएक्ट करके इट विल गेट न्यूट्रलाइज, आपको पानी दे देगा. पानी दिया तो वी फाउंड दैट कि OH नेगेटिव इतना बच गया 0.2 मोल. जब सल्फेट ने अमोनियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें पता है कि 0.2 0.4 से रिएक्ट करेगा, तो आपको 0.2 मिलीमोल ऑफ अमोनियम सल्फेट मिलेगा, और तो 0.2 मिलीमोल मेरा अमोनियम आइन बच गया. सो दिस इज इट. ओके ओके, तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि वी आर हैविंग, अब इन टोटल जो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो सिर्फ इतना नहीं है. इन योर रिजल्टेंट सोल्यूशन दिस इज द होल थिंग दैट यू आर हैविंग. आपके रिजल्टेंट सोल्यूशन में ये सब है. तो नाउ इफ यू विल सी व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ वीक बेस एंड द सॉल्ट एंड इट्स सॉल्ट. तो जब भी हमारे पास कोई वीक बेस होता है एंड इट्स सॉल्ट सोल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज द बेसिक बफर. वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, दैट बिकम्स द बेसिक बफर. देखो अब आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या है, resultant solution is this is your weak base, और ये अमोनियम का ही सॉल्ट है एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस. तो वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ वीक बेस इज नोन एज द बफर सोल्यूशन. ये कौन सा बफर सोल्यूशन है, बेसिक बफर, बेसिक बफर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द बेसिक बफर सोल्यूशन एंड फिगर आउट व्हाट विल बी द आंसर. देखो क्या होगा. तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा POH इज इक्वल्स टू PKB. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें PKB दिया हुआ है ना, तो हम PKB वैल्यूज यूज करेंगे, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. ठीक है, ये हमारा बेसिक बफर का क्वेश्चन हो गया. ओके, लेंदी वेंदी पे मत जाओ, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, वो लेंदी नहीं है, इट जस्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ डिटेल्ड वे, ताकि तुम्हें समझ आए हर बात. हमने क्या किया, हमने पूरा पूरा देखा, अच्छा कौन किससे कितना रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा क्या बचेगा. तो हमने देखा कि ये तो बन रहा है, बन रहा है, प्रॉपर तरीके से निकाला कितना कितना बन रहा है, और हमने ये भी निकाला कि क्या बच रहा है. ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि POH क्या होता है, तो POH निकालने के लिए आपको PKB वैल्यू, PKB इज ऑलरेडी गिवन टू यू विच इज़ 4.7, प्लस जब आप यहाँ पे लगाओगे लॉग, लॉग में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव आइन, क्योंकि अल्टीमेटली जो सॉल्ट बन रहा है वो अमोनियम आइन का ही है ना, यानी कि बेसिक बफर यानी कि इसी बेस का सॉल्ट है, तो अमोनियम आइन की कॉन्सेंट्रेशन हमें लेनी होती है, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बेस. बेस का मतलब हुआ इफ़ यू आर हैविंग अ वीक बेस, तो ये जो वीक बेस है ये डिसोसिएट तो होगा नहीं, तो यानी कि हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की. ठीक है, यानी कि NH4OH की हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है. तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन लेनी है इन दोनों की. अब आता है एक अगला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है समझना. ठीक है, देखो अब तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और कितना दिया हुआ था तुम्हें, 0.2 मिलीमोल था. ठीक है, दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
जो कि तुम्हारे पास है 0.2 मिलीमोल, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारे पास वाटर, जो कि है जो भी है, ठीक है। अब जब तुम इसे डिसोसिएट करोगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लग रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बफर, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर, ठीक है। देखना कॉमन आइन इफेक्ट लग रहा है, ऑड आइन इफेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, फिगर आउट। जब आपका अमोनियम आइन है, ये आपको कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो आपको देगा 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आइन प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो 0.2 मिलीमोल अगर ये है तो कितना डिसोसिएट दे करके देगा, 1 का 2 हो गया तो 2 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 इंटू 0.2 इज 0.4 मिलीमोल, 0.4 मिलीमोल हो जाएगा। दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल में रहती है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल में रहती है, ठीक है। और रिवर्सिबल में रहती है, और ये अगर आपको डिसोसिएट करेगा, ये 0.2 मिलीमोल है, तो ये आपको अगर NH4 पॉजिटिव देगा और आपको OH नेगेटिव देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 0.2 है तो आप कहोगे कि मैम 0.2 मिल जाएगा या कुछ भी मिलेगा। नाउ सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर यू आर गेटिंग द कॉमन आइन इफेक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो जरा, NH4 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव वी आर हैविंग अ कॉमन आइन इफेक्ट। तो कॉमन आइन की इफेक्ट से देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, ये तो उसी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो फॉरवर्ड में ही जानी है। बट क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अमोनियम आइन का कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों ही, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही मेरे एक ही सोल्यूशन में है, तो एक रिएक्शन तो फॉरवर्ड में ही जा रही है, वो तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये वाला अमोनियम आइन रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे अचानक से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आइन विल इंक्रीज, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आइन बढ़ जाएगी तो ये सारा का सारा OH नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा। This ammonium hydroxide and this OH negative will recombine together and reaction will shift to the backward direction, और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम तुम्हारा बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू थिंकिंग कि मेरे को अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें यहाँ से मिलेगा ही नहीं, बिकॉज द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड, द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि सारा का सारा अमोनियम आइन मुझे इसी से मिल सकता है, इससे तो कुछ मिल ही नहीं सकता है, बिकॉज द रिएक्शन इज गेटिंग, तो मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, ये नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ से निकाल सकते, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो पोर्शन मैं तुम्हें करा रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो यहाँ पे भी फिगर्ड इट आउट, ओके, ये हो जाएगा 4.7 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन मेरी 0.4 हम लोग कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि रिएक्शन फॉर बैकवर्ड में चले गई, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा बड़ा स्टेबल सा मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो अब ये कितना है मेरे पास, 0.2 है, तो मैं बोलूँगी दिस इज 0.2 मिलीमोल। तो ये तो क्या थे, हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे 0.4 और 0.2 मिलीमोल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो मोल्स हैं, मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो। अब अगर आप देखोगे तो यू नो दैट ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप करते हो। तो यहाँ पे अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 0.4 एंड 0.2, तो यहाँ पे आपका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, निकालो, देखो यहाँ पे ये 20 ml था, ये 30 ml था, तो जब 20 ml और 30 ml को मिक्स कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम बस यही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और तो कहीं से आ नहीं रहा है, तो यानी कि द टोटल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 50 ml। तो ये हो गया 50, ये हो गया 50। सो अल्टीमेटली यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, मिलीमोल्स मिलीमोल्स कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 0.2 आ जाएगा, मतलब योर होल वैल्यू कम्स आउट टू बी log 2 प्लस 4.7। ओके, अब log 2 और 4.7 को तुम लोग सॉल्व कर लो एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। log 2 कितना होता है, 0.3010। सो अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 7 8 9 10, 5.1 समथिंग आना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज माई POH वैल्यू, ये क्या है, दिस इज POH, क्योंकि बेसिक बफर के लिए वी कैलकुलेट द POH वैल्यू। ओके, स्क्रीन साइज फुल कर दूँ, अभी दिखा, विजिबल है, राहुल एक बारी कंफर्म करना।
ठीक है, तो अभी हमारा पीओएच का वैल्यू आ गया विच इज 5.1, लेकिन मुझे क्या निकालना है, व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था पीएच। तो पीएच हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो पीएच को अगर हम देखेंगे तो पीएच क्या होता है, ये एक्चुअली मेरा पेन इस पर ठीक से चल नहीं रहा, 14 माइनस पी ओ एच। तो 14 माइनस यानी कि 14 में से अपना पी ओ एच हटाओगे यानी कि 5.1 हटाओगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो तुम्हारा कितना आएगा, आई थिंक 9.0 आना चाहिए, 9.0 आना चाहिए। ठीक है, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली वाइल जूमिंग आउट द स्क्रीन, दैट्स हाउ। अभी क्लियर है राहुल, एक बारी कंफर्म करो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप, ये बेसिक बफर का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। स्टेप बाय स्टेप चलो, कुछ रटना जैसा नहीं है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, मैम मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लूँ या नंबर ऑफ मोल्स लूँ। अरे डिसोसिएट करो ना, आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इट इज गिविंग एंड जस्ट कैलकुलेट इट। डोंट बी कंफ्यूज, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपको इजी से इजी जैसे लग रहा है वैसे करो। हम्म, चलो नाउ आई एम मूविंग अहेड फॉर द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन A plus B gives you C plus D is 100. If the initial concentration of all the four species were 1 molarity each, then the equilibrium concentration of D will be. Okay, so this is the question. The equilibrium constant, चलो पहले इसे करो, let me see if my pen is working here or not. नहीं, मेरा पेन काम नहीं कर रहा, आई हैव टू जूम इट आउट। ओके, क्लियर। अब थोड़ा और बड़ा हो गया, आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू। चलिए, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। So let us begin. The question was the equilibrium constant at 298 Kelvin for a reaction A plus B gives you C plus D. इसके लिए जो तुम्हारा KEQ है that is 100, वो 100 given है. If the initial concentration of all the four species were 1 molarity each, अगर मैं बोलती हूँ इनिशियली मैंने आपको इसका 1 मोलारिटी दे दिया, इसका 1 मोलारिटी दे दिया ऑफ ऑल द फोर स्पीशीज, यानी कि इसका भी मैंने 1 मोलारिटी दे दिया, 1 मोलारिटी दे दिया, ठीक है। देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विल बी, तो इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो एट इक्विलिब्रियम what will be the concentration of D। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, what happens at equilibrium, इक्विलिब्रियम पर जैसे जैसे हमारी रिएक्शन मूव करती है तो हमारा रिएक्टेंट पहले सबसे पहले रिएक्ट करना शुरू करता है, वो डिकम्पोज होना शुरू करता है, और इक्विलिब्रियम पे हम देखते हैं कि वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, और हमारे पास रिएक्टेंट कुछ डिकम्पोज हो चुका है, प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हो चुका है, एंड नाउ दे हैव अटेन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम क्या फिगर आउट करेंगे, इफ अब इन्होंने बोला दिस इज द रिएक्शन, तो एज पर दिस रिएक्शन आई कैन से दैट अगर मैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखूँ तो 1A रिएक्ट्स विद 1B टू गिव्स यू 1C एंड 1D। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि व्हेन जब x नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करते हो, मतलब जब रिएक्ट करेंगे तो x ही बनेंगे। तो आई कैन से दैट कि लेट्स से अगर इसमें से x इज द कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से दिस इज द 1 इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज गिविंग टू यू। अगर सिमिलरली
अगर वन में से अगर मेरा एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन जो डिसोसिएट होती है, तो इसकी भी एक्स ही डिसोसिएट होगी, इसकी भी एक्स ही फॉर्म होगी, और इसकी भी एक्स ही फॉर्म होगी. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हाँ. अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, concentration of C and D divided by the concentration of A and the concentration of B. ऐसे ही होता है. सॉल्व दिस फर्दर. के ई क्यू की वैल्यू आपको 100 दी हुई है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज 1 प्लस एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज 1 प्लस एक्स. ये है आपका 1 माइनस एक्स. सब कॉन्सेंट्रेशन ही हैं, है ना. तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन की जितनी घटेगी उतनी इसकी बढ़ेगी. दिस इज ऑल्सो 1 माइनस एक्स. सॉल्व दिस. मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व कर पाओगे. दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आई कैन ऑल्सो राइट इट, ये मेरे 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल. आई कैन से दैट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10x. 10x और x इज गोइंग टू बी 11x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 यानी कि 9x इज इक्वल्स टू 9/11. यही आएगा. और जब आप इसका वैल्यू निकालोगे तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी 0.8 समथिंग. 11 90 कर दो इसे, 0.90 कर दिया, पॉइंट लगा दिया, दिस हैज़ बिकम 90. तो 11 8 जा 88, 20, तो यानी कि 11 1 जा 11. 0.81 समथिंग आना चाहिए. ठीक है. सिंपल मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट कर दिया. नाउ व्हाट नेक्स्ट? एक्स का वैल्यू आ गया. तो अब आपसे पूछा गया था द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. तो आई कैन से दैट द इक्विलिब्रियम concentration of D will be 1 plus x, and this is said to be 1 plus x का वैल्यू कितना है 0.81, and what it comes out to be 1.81 is the answer. Answer is option number A. So do this way. Let us move to the another question. आगे चले. चलिए. The question is pKa of a weak acid and pKb of a weak base are this. Weak acid का मतलब क्या होता है? If you are having Ha, तो weak acid है तो it will not dissociate completely. तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह की रहेगी. तो इसके लिए हमारे पास इसके कुछ pKa वैल्यूज़ हो सकती हैं. pKa इसके लिए आपको दिया हुआ है 3.2. और अगर मैं अपने BOH की बात करती हूँ कि ये भी मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ वीक बेस, तो ये मेरे को देगा B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. रिएक्शन रिवर्सिबल में रहेगी. तो इसके लिए आपकी pKb वैल्यू है 3.4. आपसे पूछा गया द pH ऑफ द सॉल्ट AB सोल्यूशन इज, यानी कि pH अगर ये डिसोसिएट होके अगर ये A नेगेटिव और B पॉजिटिव आपस में मिल जाए और ये AB बना ले, तो AB इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट. तो AB अगर इनका सॉल्ट सोल्यूशन होगा तो इसका pH, AB लेट्स से दिस इज द सॉल्ट सोल्यूशन, तो इसका आपको pH बताना है. pH क्या होगा? सो यू हैव अ वीक एसिड एंड यू हैव अ वीक बेस. व्हाट टू डू? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? डोंट यू थिंक अगर मैं इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना रही हूँ तो ये मेरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है.
तुम्हारे पास अगर ए बी सोल्यूशन है, ए बी सोल्यूशन है, तो यानी कि दिस इज अ सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और आपको मिल रहा है ए एच प्लस बी ओ एच। ए बी को देखें, ए बी आपका क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में। वाटर तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ये एक वीक बेसिड है, एच इज़ अ वीक एसिड, और ये भी आपका वीक बेस है। तो अल्टीमेटली जब ये आपका वीक एसिड है तो ये भी किस में रहेगा, ये भी ए एच के फॉर्म में ही रहेगा, और ये तुम्हारा वीक बेस है तो ये भी बी ओ एच के फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि नो डिसोसिएशन विल अकर। So I can say that this is cationic and anionic hydrolysis. So यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कौन सा वाला केस है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस प्लस एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि कैटाइन भी हाइड्रोलाइज हो रहा है और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस यानी कि दोनों ही हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया, हमारे दोनों ही हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होते हैं, उसके लिए आप अपना पीएच निकालने का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो। आपने अगर पूरा डेरिवेशन किया होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, और उसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा केस एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, तीसरा केस कैटाइन और एनाइन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। तो उसमें तुम्हारा क्या क्वेश्चन बनेगा, तो पता चल रहा है कैसे हमने पहचाना कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना, रिजल्टेंट मिक्सचर से, ए बी सोल्यूशन से। पिछले क्वेश्चन में हाउ यू फिगर्ड इट आउट कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये तो सिंपल इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो तुम एक तरीके से कह सकते हो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। ये क्वेश्चन कहाँ से था, you can simply say this question was from chemical equilibrium। और हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया जो कि कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड था, और हमने जो ये वाला क्वेश्चन किया था जो इतना इंटरेस्टिंग था, इसमें हमने देखा था वी वर गेटिंग दी वीक बेस एंड इट सॉल्ट। तो जब तुम्हें वीक बेस मिला और उसका सॉल्ट मिला, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, तो ये बना था तुम्हारा बफर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन था बफर सोल्यूशन का। और कैसे पता लगाया कि कौन सा बफर का सोल्यूशन है, बिकॉज वी वर गेटिंग अ वीक बेस एंड सोल्यूशन, तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक बफर सोल्यूशन। दिस इज द वे, दिस इज द पैटर्न जिस तरह से हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। और ये क्वेश्चन कहाँ से था, ये क्वेश्चन था तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन करना तो दूर है, ये पहचान भी नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन है कहाँ से है। ओके, अब देखो, जब हमारे पास कैटाइन और एनाइन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है तो हम यहाँ पे के एच भी यूज़ नहीं होता हमारा, और हमारे को पी के ए और पी के बी वैल्यू से ही हमारा आंसर आ जाता है, और हमारा फॉर्मूला बनता है इस केस में, यानी कि तुम कह सकते हो 14 प्लस पी के ए प्लस, सॉरी, माइनस पी के बी, एक सेकेंड, 14 प्लस पी के माइनस पी के बी, दिस इज वॉट यू कैन डू। करो अब, बस ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। आपको ये पहचानना था कि ये क्वेश्चन क्या है और उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना था। ठीक है, अगर नहीं आता है फॉर्मूला पुट करना तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग अब इस मोमेंट पे। ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट नो कि किस तरीके से फॉर्मूलाज को डेराइव करते हैं तो उस पर भी या तो इधर आई विल टेक अ सेशन और यू अटेंड माई प्लस क्लासेज, देयर आई डिस्कस्ड एवरीथिंग। तो 14 प्लस पी के यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 3.2 दिया हुआ था, माइनस पी के बी वॉज गिवन टू बी, पी के बी इज 3.4। सॉल्व इट, कितना आ रहा है, 14 माइनस का 0.2, इस पूरे का हाफ भी कर दो,
पूरे का हाफ भी करेंगे। यस। कितना आएगा? 6.9। मार्क इट। 6.9 इज द आंसर। डन। इफ यू वांट कि मैं स्लाइड शो पूरा करूं, सो या दिस इज द स्लाइड। इज इट क्लियर? I think more clearly visible. Now we will be moving ahead with the question number 5 for you all. Question number 5. Read the question carefully. An aqueous solution contains 0.10 molarity H2S and 0.20 molarity HCl. If the equilibrium constants for the formation of HS negative from H2S is this and that of S2 negative from HS negative is this, then the concentration of S2 negative ion in aqueous solution is. देखो, rather than just going with the question, think of it very thoroughly. एक एक करके reaction form करो and write down all the data which is given to you. First do that. This is the question. एक मिनट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाँ, देखिए, एन एक्व सोल्यूशन कंटेन्स 0.10 मोलारिटी H2S। एक एक्व सोल्यूशन है जिसमें मेरे पास H2S है और आई एम हैविंग HCl। H2S मुझे दिया गया है 0.10 मोलारिटी और HCl मुझे दिया गया है 0.20 मोलारिटी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, अब सुनो अगला पार्ट क्या है, इसका एक्व सोल्यूशन है, इसका एक्व सोल्यूशन। और ये अब बोला गया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS नेगेटिव फ्रॉम H2S। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H2S है दैट इज़ अ वीक एसिड, ये कोई वीक एसिड है। जब हम इसमें से HS नेगेटिव बनाते हैं तो H2S का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इसका जो KEQ है वो क्या है तुम्हारा 1 × 10⁻⁻⁷ है। ठीक है, एंड दैट ऑफ S2 नेगेटिव। और अगर मेरे को S2 नेगेटिव चाहिए हुआ किससे, फ्रॉम HS नेगेटिव आइन, यानी कि HS नेगेटिव भी मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मेरे KEQ की वैल्यू होगी 1.2 × 10⁻⁻30। ठीक है, ये आपको ये दो इक्वेशंस दिए हैं कि ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, इसका KEQ इतना है, इसका KEQ इतना है। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव आइन इन द एक्वस सोल्यूशन। अब इसकी आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज। करिए, कैसे करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो, जो HCl होता है, जो HCl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको डिसोसिएट करके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देता है। तो HCl कितना था, 0.20 मोलारिटी था। ठीक है, तो ये आपको कितना देगा, 0.20 मोलारिटी, यानी कि 1 मोल 1 देता है तो इतना देता है, तो ये भी 0.2 मोलारिटी ही दे देगा और ये भी आपको 0.20 मोलारिटी दे देगा। लेकिन मेरे से पूछा ही नहीं गया कि H पॉजिटिव की कितनी कॉन्सेंट्रेशन, मेरे से सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है। अब जब हम H2S की बात करते हैं
तो H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। जब ये डिसोसिएट करता है तो हमें देता है 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। और जब आप इसको देखोगे 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, तो बेसिकली क्या आपके पास इसके लिए KEQ दिया हुआ है? इस रिएक्शन के लिए आपके पास KEQ दिया हुआ है? नहीं। लेकिन आपके पास इसके लिए और इसके लिए दिया हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, इफ़ दिस इज़ माई एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो आई विल बी गेटिंग H2S प्लस HS नेगेटिव गिव्स यू HS नेगेटिव प्लस S2 नेगेटिव। तो HS नेगेटिव कटा, H2S अल्टीमेटली गिव्स यू S2 नेगेटिव। मुझे ये मिल रहा है ना? यानी कि सेम एक्सप्रेशन आ रही है। तो व्हेन वी ऐड टू रिएक्शंस, तो जब हम उन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके इसको अचीव कर सकते हैं, तो क्या इन दोनों के KEQ को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इन दोनों के को ऐड कर रही हूँ, तो इनका K का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि KEQ1 मल्टीप्लाइड बाई KEQ2 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻13। तो 1 इंटू 1.2 इज 1.2 -7 और 13 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 10⁻⁻20। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरी वैल्यू आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻20। सो दिस इज़ द वैल्यू विच आई हैव रिसीव्ड। ये मुझे मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे अब अगला पार्ट। ये मेरे पास KEQ की वैल्यू आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास क्या होगी। तो किसी भी चीज़ की अगर तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यू नो दैट दिस इज द H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर S2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। यही होता है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम KEQ। और KEQ तुमने अभी भी निकाला कि इस एक्सप्रेशन के लिए KEQ तुम्हारा होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻20, यही होगा। तो विच इज इक्वल्स टू, अब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ये कहाँ से लोगे? नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? नाउ सी गाइज, अब यहाँ पे आता है वापस से कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट क्यों आता है? मेरी बात समझो। तुम्हारे पास है ये ऑरेंज कलर मैं ले रही हूँ, HCl पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, डिसोसिएट होके H पॉजिटिव दिए 0.20 मोलारिटी। H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, डिसोसिएट नहीं हो सकता, 2H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये कुछ कुछ दे रहा है। अब यहाँ पे तुमने देखा कि H पॉजिटिव इज़ अ कॉमन आइन इफेक्ट। ये दोनों स्पीशीज़ एक ही सोल्यूशन में है और इनका दोनों का आइन कॉमन है, दे हैव अ सेम कॉमन आइन। तो अल्टीमेटली अगर इनके पास सेम कॉमन आइन है और मुझे इसके लिए H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो डोंट यू थिंक कि अब इस सोल्यूशन को क्या पता कि मेरे पास H पॉजिटिव इसका है कि इसका है? वैसे तो मेरा रिएक्शन रिवर्सिबल बैकवर्ड में चले जाना चाहिए, बट अल्टीमेटली इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि सोल्यूशन को पता थोड़ी है कि मेरा H पॉजिटिव की दूसरे का H पॉजिटिव, वो भी H पॉजिटिव दे रहा है, मैं भी H पॉजिटिव दे रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ द कॉमन आइन इफेक्ट इसका भी कॉन्सेंट्रेशन इतना ही हो जाएगा। कितना? 0.20 मोलारिटी। तो हम यहाँ पे 0.20 मोलारिटी लिख सकते हैं। ये बात आई समझ में? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो तुम्हें समझने की है। ठीक है, अब सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें निकालनी ही है। अब आता है H2S। अब जब हमें पता है कि कॉमन आइन इफेक्ट लगने की वजह से, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फॉरवर्ड नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है दैट मूव्स इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इफ दिस मूव्स इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर ये पीछे वाले रास्ते में लौटेगी, तो अल्टीमेटली H2S बिकम्स मोर स्टेबल, ये बिल्कुल डिसोसिएट ही नहीं होगा। और ये तुम्हें कितना दे रखा था? शुरू में दिया हुआ था कि H2S तुम्हारे पास 0.1 मोलारिटी है, तो यानी कि ये 0.10 मोलारिटी 0.10 मोलारिटी ही रहेगा अभी भी, क्योंकि इट इज़ नॉट गेटिंग डिसोसिएटेड, बल्कि ये कॉमन आइन की वजह से कह रहा है स्टेबलाइज करो H2S को। तो अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S विल रिमेन बी 0.10 मोलारिटी। अब देखो, मुझे पता चल गया मेरे H2S का कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन तुमने लगा ही दिया। अब सल्फाइड ही तो पता करना था। सो इफ़ यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एवरीथिंग, यू विल बी गेटिंग 1.2 इंटू 10⁻⁻20 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.20।
ठीक है. If you do the cross multiplication of this and this, you will simply be getting this. अब कर लो इसे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये तो वन ही है. ठीक है. सो अल्टीमेटली 10/20 इट इज़ गोइंग टू बी 2. ये 2 हो गया तुम्हारा. 2 से इसको कट करोगे तो 0.6. तो आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻20. देखो, या फिर 6 इंटू 10⁻21. यही होगा. यानी कि आई हैव डन दी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया और डिवाइड किया 10 का तो 10⁻21 हो गया. सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा. नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर द अनदर क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 6. आराम से कर रहे हैं और हर क्वेश्चन देखो, एक बफर का क्वेश्चन आ गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आ गया, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ऑल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन. सो ऑल दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो जस्ट गिव योर टाइम, put your own efforts. Okay, दूसरों को मत देखो what others are doing, just focus on what you are learning. Okay, so my sessions are not just to gather the more learners. My whole session is कि अगर किसी भी बच्चे को जो इक्विलिब्रियम में इतना स्ट्रगल कर रहा है, अगर उसका कोई भी टॉपिक क्लियर होता है, उसको क्वेश्चन समझ आने लगता है और वो करता है इस टॉपिक को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो बस दिस इज़ माई होल एम टू गिव यू दिस सेशन. ओके, सो इक्विलिब्रियम है ना. 12th वाले बच्चे, ड्रॉपर्स बच्चे बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैम हम पढ़ पढ़ के इस टॉपिक को छोड़ चुके हैं, लेकिन दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं होती. बीइंग इन 12th आई कांट पिक दिस टॉपिक अगेन. सो डोंट डू दैट, है ना. पिक द टॉपिक, यू विल बी एबल टू डू. हियर आई एम देयर टू हेल्प यू. चलिए, द pH ऑफ अ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिड HQ इज 3. यानी कि अब तुमसे आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है. क्वेश्चन बड़ा आसान है कि अगर मैंने कोई एसिड ले लिया HQ और उसके लिए बोला है कि HQ कोई एसिड है एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो इसने बता ही दिया कि ये वीक एसिड है, क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं वही इक्विलिब्रियम में जाते हैं, उन्हीं के लिए कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट बन जाता है. तो ये जब तुम्हारा H पॉजिटिव और तुम्हें Q नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, तो द pH ऑफ आ जो pH है इसके लिए वो दिया हुआ है 3 है ऑफ और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हें दिया हुआ है 0.1 मोलर है, यानी कि मोलारिटी 0.1 मोलारिटी वीक एसिड है. ठीक है, इसे यहाँ से रब कर देती हूँ. हाँ, नाउ इट्स मोर क्लियरली विजिबल. तो अब तुम्हारे पास जब ये H पॉजिटिव डिसोसिएट करता है, द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि तुम्हें Ka की वैल्यू निकालनी है. Ka क्यों लिखा? अरे इट्स वेरी सिंपल. इक्विलिब्रियम के लिए वी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Keq. अब क्योंकि एसिड है तो वी हैव डन Ka, एज सिंपल एज दैट. तो pH का मतलब क्या होता है? pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, अल्टीमेटली नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ pH इज इक्वल्स टू 3H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन. तो क्या करोगे यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी -3 इज इक्वल्स टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3, यानी कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई. अब तुम्हें पता है Ka क्या होगा, Ka होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q नेगेटिव डिवाइडेड बाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HQ. ये कोई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ी है कि HQ को ख़त्म कर दोगे, या तो HQ लेना होगा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज 10⁻⁻3. Q का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है क्या? नहीं. Ka तुम्हें निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द Ka. अब आप मुझे बताओ कि अगर HQ 1 मोलर है, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, तो 1 ही H पॉजिटिव दे रहा है तो 1 ही Q नेगेटिव दे रहा है, यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा. तो अगर H पॉजिटिव मेरे पास इतना है तो Q नेगेटिव कितना होगा, और HQ तुम्हारे पास कितना है? जब H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, करो एक बारी, बता, मैंने सब कुछ दिया है, यू जस्ट डिड योर वे.
आ गया आंसर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू नेगेटिव भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? (10⁻³ because this is equals to the concentration of Q negative. बराबर का आ रहा है ना एज पर द इक्वेशन. 1 मोल इतना डिसोसिएट करता है तो इतना ही डिसोसिएट करता है इन द सेम वॉल्यूम, तो सब कुछ सेम है, तो बराबर का होगा. एंड एच क्यू का कितना दे रखा है? 0.1 दे रखा है, यानी कि आई कैन से दैट 10⁻⁻1 दे रखा है. सो व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस, तो 1 से 1 कट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 10⁻⁻5. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो के क्या आ रहा है तुम्हारा? 10⁻⁻5. दैट इज द ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? गुड इनफ. Now we will be focusing over the another question. How many liters of water must be added to 1 liter of aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution of pH of 2? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है. इफ़ यू विल डू योर वे आपको मज़ा आएगा. सो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि मुझे वाटर ऐड करना है एंड आई नीड टू नो अबाउट इट्स वॉल्यूम इन लीटर, कि मैं कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करूँ. ठीक है, ठीक है. तो किसमें? मस्ट बी एडेड टू एन 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl. तो लेट्स से मैंने HCl का एक्वा सोल्यूशन लिया, कितना है? दैट इज, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर. टू अ 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl विद अ pH ऑफ 1, जिसका pH भी 1 है. pH 1 है तो अगर pH इसका 1 है तो क्या हो गया? pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन. pH आपका 1 दे रखा है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे ये जो HCl है व्हेन इट इज़ गेटिंग डिसोसिएटेड, तो ये तुम्हें दे रहा है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम्हें यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल रही है? 10⁻⁻1 मोलारिटी मिल रही है. तो ये अगर 10⁻⁻1 मोलारिटी, तो 1 मोल 1 ही देता है, तो ये भी तुम्हारे पास इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलारिटी हो गई. तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻1 मोलारिटी. ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, पीएच ये है. ठीक है. तो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि विद द पीएच ऑफ 1 टू क्रिएट एन, अब हम चाहते हैं कि एक्वा सोल्यूशन विद पीएच ऑफ 2, कि मैं इसमें कुछ पानी ऐड करूं और मेरे पास HCl का एक्वा सोल्यूशन बन जाए, यानी कि HCl प्लस पानी हो जाए जिसका pH मेरे पास 2 हो जाए. तो pH 2 हो जाए यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मेरे पास कितनी हो जाए? 10⁻⁻2 हो जाए. और इसका मतलब हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl मेरे पास कितनी हो जाए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl मेरे पास कितनी हो जाए? 10⁻⁻2 हो जाए. ठीक है. तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl यहाँ पे मेरे पास 10⁻1 है और यहाँ पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज 10⁻2. सो आई नीड टू नो इसमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, दैट वी हैव टू ऐड. तब जाके हमें ये मिलेगा. करो, कैसे करोगे? लॉ ऑफ डाइल्यूशन से, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी HCl है, बस इसमें कुछ पानी ऐड करके तुम्हारे HCl का कॉन्सेंट्रेशन बदल गया है. ओके. तो बेसिकली क्या हुआ होगा? तो आई कैन से दैट कि यहाँ पे भी मेरे पास HCl है, यहाँ पे भी मेरे पास HCl है. इट जस्ट दैट कि ये वाला जो HCl है इसकी मोलारिटी कुछ M2 है, V2 है, यहाँ पे इसकी कुछ मोलारिटी M1 है, V1 है, क्योंकि बोथ द साइड्स आई एम हैविंग HCl. हियर ये वाला जो HCl है इसका स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास 10⁻⁻2 मोलारिटी. वॉल्यूम नहीं पता तुम्हें, यू डोंट नो अबाउट द वॉल्यूम कि इसका वॉल्यूम कितना है, बट यहाँ पे यू नो दी इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻1 एंड वॉल्यूम यू नो कि वॉल्यूम इज 1 लीटर जो ऑलरेडी गिवन था.
ठीक है, हेयर द वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो व्हेन यू विल डू ऑल दिस आपको V2 पता चल जाएगा, यानी कि इसमें यहाँ पे HCl का कितना डाइल्यूशन है यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम व्हेन यू विल कैलकुलेट तो आएगा 10⁻⁻1 इंटू 1 लीटर डिवाइडेड बाई 10⁻²। अल्टीमेटली व्हेन यू विल सॉल्व तो 1 से 1 कैंसिल, 10⁻1 ही आना चाहिए, 10⁻1 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, दिस विल बिकम 10 लीटर्स, 10 लीटर्स हो गया, 10 लीटर्स हो गया। लेकिन अब आप ये सोचो कि ये 1 लीटर है, ये वाला HCl इज 1 लीटर, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास लेफ्ट में और राइट में दोनों में सेम चीज़ें हैं। सो वेनेवर मेरे पास अभी भी HCl है, अभी भी HCl है, कुछ बदल नहीं रहा है, बस बदल इतना रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, कॉन्सेंट्रेशन सॉरी इसकी ज़्यादा थी, इसकी कम हो गई, तो पानी डाला होगा तभी डाइल्यूट होकर वो कम हो गई। तो यानी कि शुरू में हमने यहाँ पे 1 लीटर लिया, यहाँ पे हमने 10 लीटर लिया, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वी एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हुआ होगा, इस 10 लीटर में से 1 लीटर को घटा दो तो 9 लीटर्स इज द वाटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, can I still crack J means 2023 Apple attempt and get 99%? I will start now from basics level 0. Be honest with me, ma'am, please. Your target is 2023 April attempt. If you will see, there are 5 months. Okay. It totally depends on how much efficiently you are going to work. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क वेरी वेरी एफिशिएंटली फ्रॉम ज़ीरो इटसेल्फ, डजेंट मैटर, बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि ज़ीरो से पढ़ने में एक फ़ायदा ये होता है कि यू डोंट हैव मेनी कन्फ्यूजन्स इन योर हेड ऑलरेडी, है ना। जब हम बीच में से पढ़ते हैं, इधर उधर से हमें आता है, आधा सही आता है, आधा गलत आता है, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना। तो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट एंड योर एबिलिटी टू ग्रैब द थिंग्स। तुम कितना जल्दी चीज़ें समझ लेते हो, हाउ एक्टिवली यू कैन लर्न। इट जस्ट दैट यू आर अ वेरी वेरी एक्टिव लर्नर एंड यू हैव नॉट जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो तुम कर सकते हो, बट एक्टिव लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर मैंने आज कोई सेशन देखा तो वो सीधे मेरे दिमाग में स्टोर हो गया, मतलब मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ। ओके, तो दैट इज़ एक्टिव लर्निंग, कि अगर हम कोई क्लास अटेंड भी करें और हमारे को समझ में आ जाए, सो इफ़ यू अटेंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप उसको समझ पा रहे हो मैम व्हाट इज शी ट्राइंग टू से, तो या यू कैन। ओके, आई होप आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन टेक्स। कुछ बच्चे 3-3 साल से मेहनत करते रहते हैं, लेकिन दे आर वेरी इनएक्टिव लर्नर, वो क्लास में का आधा काम घर में वापस के बाद में करते हैं। सो दिस वे आप 3 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, या यू विल नॉट बी गोइंग टू क्रैक द पेपर। सो टाइम इज नॉट, टाइम डजेंट मैटर्स मोर, योर लर्निंग एबिलिटी मैटर्स मोर। ठीक है, समझ रहे हो आप टारगेट्स को किस तरह से पूरे करते हो, ये मैटर करता है, ना कि घंटे कितने पढ़ते हो, साल कितने लगाते हो, ये मैटर करता है। इफ़ यू विल सी देयर आर मेनी अनअकैडमी टीचर्स जिन्होंने 4-4 महीने में जेई का पेपर क्रैक किया है। सो या आपको स्लॉग मारना पड़ता है, आपको लगना पड़ता है, आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एंड इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दैट, या आई वुड से यू कैन। ओके, चलिए, now here we have the another question, which is the question number 8. Solid barium nitrate is gradually dissolved in a, पढ़ो एक बारी, रीड करो क्वेश्चन को। Solid barium nitrate is gradually dissolved in a 1 into 10⁻⁴ molarity sodium carbonate solution. At what concentration of barium ion will a precipitate begin to form? KSP आपको दे रखा है बेरियम कार्बोनेट का ये। Okay, so if you will see the question, सॉलिड बेरियम नाइट्रेट ग्रेजुअली क्या कर रहा है, घुलना शुरू हो रहा है, ग्रेजुअली डिजॉल्व। किस में डिजॉल्व हुआ, पानी में नहीं, सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में, यानी कि आई हैव टेकन सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन।
ठीक है। सो सॉलिड बेरियम नाइट्रेट इज डिजॉल्व्स इन अ कितना कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलारिटी। ओके, अब मैंने इसे इसमें डाला, इसने डिजॉल्व होना शुरू किया। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन विल अ प्रेसिपिटेट बिगिन टू फॉर्म, यानी कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग द बेरियम कार्बोनेट, है ना, बेरियम कार्बोनेट बनेगा। तो बेरियम एंड कार्बोनेट BaCO3 बनेगा, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द 2 moles ऑफ NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज 2 moles ऑफ NaNO3, आपको ये बनेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, नाउ द सेम क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द KSP। ये क्वेश्चन अब आपका कहाँ से है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से है, जहाँ से हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, ये बेरियम आयन की यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। बेसिकली दिस विल डिसोसिएट्स टू गिव्स यू Ba+2 moles ऑफ NO3। तो यहाँ पे इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, what has to be the concentration of this barium to produce precipitate begin to form, ताकि मेरा precipitate बनना शुरू हो जाए। ठीक है, अब आपका precipitate किसका बन रहा है, अगेन वी विल डिवाइड द होल क्वेश्चन इनटू द 3 पार्ट्स, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट मेरा बन रहा है बेरियम कार्बोनेट, ये क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट होना शुरू कर रहा है। सो आई नो दैट बेरियम कार्बोनेट मेरा प्रेसिपिटेट करता है, यानी कि दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल। यहाँ पे इसका कुछ अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम KQ की जगह KSP लिख देंगे, एंड देन इट इज गोइंग टू बी Ba+2 प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी दिस, ये हमारा ये हो जाएगा। नाउ फिगर आउट, अब अगला अगला देखो कि अब वापस अब इसमें सेकेंड पार्ट में क्या होगा। अगर ये तुम्हारा KSP हो गया तो यू कैन से दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आइन, ठीक है। KSP की वैल्यू तुम्हें दी है विच इज़ 5.1 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेरियम आइन, तुम्हें बेरियम आइन का तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता ना कि कितना यहाँ पे बेरियम आइन तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट करेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डोंट नो, बट क्या आपको पास कार्बोनेट का पता है आपको कि डू यू नो द कार्बोनेट आइन। नाउ लेट मी हेल्प यू, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, अगर ये सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता, सो इफ दिस सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन, तो ये आपको क्या देता, 2Na पॉजिटिव देता प्लस CO3 2 नेगेटिव देता। तो ये आपके पास कितना दे रखा था, 1.0 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 मोल आपको कितना मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव देता है, 1 मोल ही देता है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स मी 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से इसका कुछ अपना वॉल्यूम रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका कुछ अपना वॉल्यूम रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए, 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब जो वॉल्यूम इसका रहा होगा वही वॉल्यूम इसका है, तो यहाँ पे भी इसके भी नंबर ऑफ मोल सेम ही आएंगे, 1 मोल गिव्स यू 1 मोल ऑफ दिस, तो यानी कि वेरी इजी कैलकुलेशन। सो दिस विल ऑल्सो गिव मी 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल वाला वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द मोलारिटी हेयर, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी कार्बोनेट आयन की, यानी कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू हो गई 1.0 इंटू 10⁻⁻4, यही हो गई। तो आई कैन पुट द सेम वैल्यू, मैं इसे यहाँ पे लिख सकती हूँ इंटू 10⁻⁻4, दिस इज द वैल्यू विच आई कैन पुट फॉर द कार्बोनेट आयन। दिस इज इट व्हाट यू नीड टू डू। देखिए तो यानी कि मेरे पास मेरे कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो जहाँ पे ये मुझे देगा ना, सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट तुम ऐड कर रहे हो विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो उसका जितना कॉन्सेंट्रेशन था उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हमारा कार्बोनेट आयन का रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। नाउ फाइंड इट आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, 5.1 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 1.0 इंटू 10⁻⁻4, so this comes out to be 5.1 into 10⁻⁻5, ठीक है, 5.1 into 10⁻⁻5। अब the question was asking कि at what concentration of barium ion will a precipitate begin to form, यानी कि बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अलग अलग है क्या,
आर वी एडिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स हेयर? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि कितना, मतलब मेरे पास इतना कार्बोनेट है, इतने कार्बोनेट, जब, क्योंकि इतना कार्बोनेट जब इतने बेरियम आइन से रिएक्ट करेगा तभी ये बेरियम कार्बोनेट बनेगा. So this much of carbonate, so basically this much of carbonate is CO32 negative is 1.0 into 10 the power minus 4 को तुम्हारे कितने बेरियम आइन से रिएक्ट करना पड़ेगा? 5.1 इंटू 10 the power minus 5 से जब ये रिएक्ट करेगा तभी तुम्हारा बनेगा बेरियम कार्बोनेट, तभी यू विल बी गेटिंग द बेरियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे बेरियम आइन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड है? द सेम. देर इज नो लॉ ऑफ डाइल्यूशन, यहाँ पे कुछ डाइल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है. वी आर नॉट चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन कि यहाँ कुछ अलग है, अलग वॉल्यूम नहीं. तो वॉल्यूम तो सेम है द थ्रू आउट द रिएक्शन. सो इफ थ्रू आउट द रिएक्शन देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बेरियम आइन का यहाँ पे यही आएगा. दैट इज 5.1 इंटू 10 द पावर माइनस 5. हाँ, अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर रहे होते, इनिशियल वॉल्यूम अलग है, फाइनल वॉल्यूम अलग है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, तो फिर ये तुम्हारा वैल्यू बदल जाता. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. गॉट इट? हाँ, चलिए. So here we move on to the another question, which is the question number 9. The three reactions involving the H2PO4 negative are given below. हमारे पास तीन reactions हैं, which is this, this and this, जिसमें हमने H2PO4 negative की बात की है. यहाँ पे H2PO4 negative ये गया, H2PO4 negative, H2PO4 negative. In which of the above does H2PO4 negative act as an acid? इन तीनों में से कहाँ पे H2PO4 negative as a acid behave कर रहा है? So you know what is acid? Acids are प्रोटोन डोनर्स. एसिड्स हमारे प्रोटोन डोनर्स होते हैं. तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है जहाँ पे ये ऐसा प्रोटोन दे रहा हो? क्या ये यहाँ पे प्रोटोन दे रहा है? नहीं. क्या ये यहाँ पे प्रोटोन दे रहा है? यस, एब्सोल्युटली. हियर इट इज़ अ प्रोटोन डोनर. इसने क्या किया? H2PO4 नेगेटिव ने अपना अगर एक H पॉजिटिव देगा तो बन जाएगा HPO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और वो H पॉजिटिव वाटर एक्सेप्ट करके बना सकता है H3O पॉजिटिव. ठीक है. एक H2PO4 नेगेटिव यहाँ पे अपना प्रोटोन दे रहा है? नहीं, यहाँ पे वो ऐसा प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पे वो प्रोटोन डोनर है और इस रिएक्शन में वो एक्सेप्ट कर रहा है और H3 बना रहा है. सो हेयर इट इज़ अ प्रोटोन एक्सेप्टर. तो प्रोटोन एक्सेप्टर तो बेस होते हैं. सो आवर आंसर इज ओनली 2, सेकेंड ओनली. दैट इज द ऑप्शन नंबर ए. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज दिस. द क्वांटिटी ऑफ, अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे वापस से ये क्वेश्चन आ गया. हाँ, साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन है. हियर लेट अस पिक येलो कलर फॉर यू. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज 5.0, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? AgBr. AgBr के लिए अगर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करोगे तो दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव में डिसोसिएट होगा. बट इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज ये एक प्रेसिपिटेट होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है. एंड हेयर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 5.0 इंटू 10 द पावर माइनस 13. द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड. अब नाउ सी द क्वेश्चन. द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड टू बी एडेड टू, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो. यानी कि अब आप इसमें AgBr में कितना पोटेशियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे. ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड विल बी एडेड. मोलर मास टेकन एज, जिसका मोलर मास है 120 ग्राम पर मोल, टू बी एडेड टू the quantity of potassium bromide to be added to 1 liter. एक सेकेंड, AgBr को पहले थोड़ा रब कर देते हैं, अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू बी एडेड टू पोटेशियम ब्रोमाइड हम कितना ऐड करेंगे? टू 1 लीटर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr.
ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन। द क्वांटिटी ऑफ केबीआर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ केबीआर आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आपसे इसका मास पूछा जा रहा है, कितना मास आप ऐड करोगे। टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 1 लीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम आपको क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी है 0.05 मोलारिटी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, ताकि AgBr अपना प्रेसिपिटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, सो दिस इज द होल क्वेश्चन इज। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ, तो अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, अब अगेन वी विल डिवाइड द होल क्वेश्चन इनटू द 2-3 पार्ट्स। पहले सिल्वर नाइट्रेट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर ये सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास है, तो द सिल्वर नाइट्रेट विल डिसोसिएट्स इनटू Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मोलारिटी एंड वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज 1 लीटर। ये आएगा मेरे पास निकल के 0.05 मिलीमोल्स। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी 0.05 मिलीमोल ऑफ Ag पॉजिटिव एंड 0.05 मिलीमोल of NO3 negative. तो ये these are the number of moles which I will be getting. अब AgBr, अब AgBr को सॉल्व करते हैं। AgBr इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट जो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देता है। तो अगर ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देता है, तो यू कैन से दैट हेयर द KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास कितना Ag रिएक्ट करेगा कितने Br से, तो AgBr बनेगा। तो यहाँ पे KSP का वैल्यू इज 5.0 इंटू 10⁻13 -13 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag। आप जितना सिल्वर नाइट्रेट डालोगे उतना ही इससे रिएक्ट करेगा, जितना सिल्वर डालोगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स डालोगे वो उतने ही ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा। तो Ag पॉजिटिव का आपने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, दैट इज 0.05 मोल। तो 0.05 मिली मोल आप इन्हें Ag के डाले, एंड दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, सो डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में है ये, यहाँ पे वॉल्यूम था 1 लीटर, तो यहाँ पे भी 1 लीटर ही रहा होगा, तो दिस इज 1 लीटर। और आपके पास ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन है, ऑफ कोर्स नॉट, यू डोंट नो कि कितना ब्रोमाइड मैंने डाला है। ठीक है, ओके अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग कि ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए। अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी ब्रोमाइड इज इक्वल्स टू 5.0 इंटू 10⁻13 मल्टीप्लाइड बाय 1 लीटर डिवाइडेड बाय, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था आपका, डिवाइडेड बाय 0.05 मिली मोल्स। ठीक है, और ये जो 5.0 था ये दिस वाज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब आप इसको देखोगे तो मिलीमोल्स पर लीटर इज जस्ट द मोलारिटी। तो इसका मोलारिटी आ जाएगा। सो व्हाट द वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर मैं इसे 5 बना दूँ, यानी कि मल्टीप्लाई करके बाई 100 एंड डिवाइड करके बाई 100, तो ये हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, अब ये बचा 100, 100 ऊपर जाएगा तो ये आएगा आपका 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 कॉन्सेंट्रेशन। सो दीज विल बी दी नंबर ऑफ, ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन तुमने निकाल ही लिया है, कितना आया था, 10⁻⁻12 आया, कितना आया, 12, सॉरी मैंने गलत लिखा है, दिस हैज़ टू बिकम 11 ना, 11 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे 11 हो जाएगा, सॉरी। सो दिस वाज 11, 10⁻⁻11। अब आपको देखना है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है ये ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था मास कितना यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली मोलर मास आपको KBr का दिया हुआ है, दी मोलर मास इज ऑफ दी KBr। तो अब आपके पास अगर मास दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी मास। तो अब हमारा मास क्या होगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻11 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी अपॉन वॉल्यूम, राइट, that is in molarity, number of moles is equals to molarity into volume। मोलारिटी आपके पास यहाँ पे 10⁻⁻11 है, और जो वॉल्यूम है आपके पास, जो V है आपके पास, अब आपने KBr में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला था,
ओके, सो यू आर हैविंग द पोटेशियम ब्रोमाइड एज अ सॉल्ट, जिसमें आप 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन डाल रहे थे, तो ये भी 1 लीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 10⁻⁻11 नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हो जाएंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट यू विल बी हैविंग नाउ। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो आई नीड टू फाइंड आउट दी मास। तो यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास रहता है आपका। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। तो यहाँ पे आपको मास निकालना है, तो मास कम्स आउट टू बी एन इंटू मोलर मास, एन इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हो गए, 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स जितने इसके होंगे उतने ही के होंगे, क्योंकि जितना आप ब्रोमाइड लोगे, जितना आप बी आर नेगेटिव लोगे, उतना ही आपको के पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो बेसिकली दोनों के सेम होंगे, है ना। लेट्स से मैंने इसके 10⁻⁻11 लिए, इसके 10⁻⁻11 लिए, तो इन दोनों ने मिलके मेरे को के बी आर बनाया, जिसके के बी आर के नंबर ऑफ मोल्स भी 10⁻11 हो गए। तो ये बात रिलेट कर पाए, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमाइड एंड यू विल बी हैविंग, लेट्स से मेरे पास बी आर नेगेटिव 10⁻11 है, तो उसके लिए उतना ही मेरे को पोटेशियम आइन चाहिए होगा व्हेन दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म द के बी आर। तो के बी आर के नंबर ऑफ मोल्स भी, यानी कि इफ आई एम टेकिंग दिस फॉर द के बी आर के लिए अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, द होल कैलकुलेशन इज फॉर द के बी आर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी मेरे के बी आर के लिए और मास भी मैं के बी आर का ही ले रही हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के बी आर इज गोइंग टू बी 10⁻11, मोलर मास आपको के बी आर का दिया हुआ है 120 ग्राम पर मोल, ठीक है। एंड व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस, तो आपके पास दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल से मोल कैंसिल, ग्राम में आंसर आ जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी, आप कह सकते हो 1.2 अगर आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ 1.2 में है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो यानी कि आई नीड टू डू दी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 100। तो अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग 1/2, और मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग 10⁻⁻9। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने ए जी वी आर, जहाँ पे के एस पी है वहाँ के एस पी लगाओ, जहाँ पे ए जी एन ओ थ्री है उसको देखो डिसोसिएट करके वो तुम्हें कितने सिल्वर आइन दे रहा है, फिर वहाँ से तुम्हें यू विल बी गेटिंग टू नो कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर और फिर बी आर का तुमने मास निकाल दिया। सिंपल, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, मोर और लेस वी आर डीलिंग विद द मोल कॉन्सेप्ट। This is it, guys. Okay, so rest of the question, there are 5 more questions which I am giving you in homework, and if you are not able to do, definitely we will be able to discuss them in the next upcoming sessions. Okay, so question number 11, 12, 13, 14, 15, take them in homework and try to do them. ठीक है, आप फिगर आउट करना सीखो कि कौन सा क्वेश्चन किसका है। प्रिपेयर, राइट डाउन द एक्सप्रेशन वेल, हर डाटा को लिखो और देखो मेरा बन क्या रहा है, एज अ फाइनल व्हाट आई एम गेटिंग, क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज इट, थैंक यू सो मच, विल सी यू सम अदर डे, बाय।